Hello students. Now today here we are going to discuss about our next chapter, unit number 15, our environment. So let us first we discuss about the environment. What is it? Environment क्या होता है? तो ये हम लोगों ने आगे भी पढ़ा हुआ है. So the surroundings in which a person, animal or plant lives, that is called environment. है ना, हम लोग बोलते थे कि everything surrounding us, that we call environment. तो everything surrounding us in which a person, animal or plant live, that all are included and that is called environment. All the organism including plants, animals, microorganism and their physical surrounding with which they interact, that is called environment. Yes, also हम लोग बोल सकते हैं कि all the organism included like plants, animal, microorganism and that surrounding and they interact, that is called environment, है ना. Also environment include air, light, soil, temperature, water and the presence or absence of another organisms. Also all the biotic and abiotic components of environment are dependent on each other for maintaining balance, and therefore the different components of the environment are interlinked and are interdependent. Yes, why the different components of an environment are interlinked and are interdependent? Because all the biotic mean a living being and a abiotic mean a non-living thing components of the environment are dependent on each other. Why? Because of the maintaining the balance in an ecosystem, and that is why the different components of the environment are interlinked and are interdependent. So ये हम लोगों ने देखा environment, है ना. Next we discuss about the waste substances added to the environment, है ना. So we know that about it कि humans add to the many waste substances to the environments. The waste product are divided into the two part, biodegradable waste and a non-biodegradable waste. So first we discuss about the biodegradable substances, है ना. So the substances which can be decomposed by a microorganism, that are called biodegradable substances. कि जो substance को microorganisms के थ्रू डिकम्पोज हो सकता है तो उसे हम लोग बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, है ना. एग्जाम्पल देखें तो ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, वेजिटेबल, फ्रूट पिल्स, डेड प्लांट्स, एक्सेल, चिकन एट्सेट्रा. सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. So the substances which cannot decompose by a microorganism are called non-biodegradable substance. तो जो सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. एग्जाम्पल देखें तो प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन, मेटल, टायर, पेंट्स एट्सेट्रा, है ना. Next part we discuss about the ecosystem. It is the most important question कि जो चैप्टर नंबर 15 एनवायरनमेंट है उसमें से 3 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है. कि 3 मार्क्स में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव रहेगा. तो 2 मार्क्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से एक है इकोसिस्टम जो एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार अभी तक एग्जाम में आ गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट ऑन इकोसिस्टम एंड देयर कंपोनेंट्स. ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज इट, इकोसिस्टम किसे बोलेंगे. So this is a system of interdependencies among various living being and a non-living thing in a given habitat. Yes, it is a system in which a living being and a non-living being interdependence each other respect to their habitat. तो that is called ecosystem, है ना. Also हम लोग लिख सकते हैं define में कि biotic community together with the physical environment form an इंटरैक्टिंग सिस्टम. सो दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. की एक सिस्टम की जिसमें बायोटिक कम्युनिटी जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरैक्ट करता है तो ये होगा इट इज़ अवर इकोसिस्टम. ऑल्सो एन इकोसिस्टम मे बी अ स्मॉल और लार्ज साइज, है ना. इकोसिस्टम स्मॉल या तो लार्ज साइज में हो सकता है. ऑल्सो इकोसिस्टम हैज़ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. यस, उसके कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूट है और स्पेसिफिक फंक्शन वो क्रिएट करता है. नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. तो अगर हम लोग जनरली देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल also divided into the terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem.
टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल देखें तो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, एक्वेटिक के एग्जांपल देखें तो फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में आएगा रिवर और लेक्स, और मरीन वाटर में मरीन इकोसिस्टम में आएगा ओशन। एंड मरीन इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। MCQ SQ में आ सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट इज आर्टिफिशियल, ह्यूमन मेड, है ना, in which garden, aquarium, there are many different things made by a human being that are the example of artificial ecosystem। तो ये लोग हम लोगों ने देखा इकोसिस्टम। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम की इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। तो बेसिकली ईच इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ टू कंपोनेंट, अ बायोटिक कंपोनेंट एंड अ बायोटिक कंपोनेंट। कि हर एक इकोसिस्टम दो चीज़ों से बनी है, दो कंपोनेंट, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक मीना नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले बायोटिक की बात करें तो अल्सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दी थ्री डिफरेंट पार्ट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड अ डीकम्पोजर। एंड कंज्यूमर अल्सो डिवाइडेड इनटू दी फोर पार्ट, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड अ पैरासाइट्स, है ना। सो दे इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ओके, ये चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हो, करना है तो। Now each ecosystem consists of a two main component, है ना, biotic and abiotic। So let first we discuss about the abiotic component. What is it? So all the non-living component that we are calling abiotic। जितने भी non-living है उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, abiotic। अभी कौन कौन सा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल में हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे सॉइल, वाटर और एयर ले सकते हैं ना। फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, ये भी अबायोटिक कंपोनेंट हुए। और क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक लाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, तो ये भी क्या हुई, क्लाइमेटिक फैक्टर, ये भी अबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल। ओके, तो अबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल में आता है फिजिकल एनवायरनमेंट के सॉइल, वाटर, एयर। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। और क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। सेकेंड बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अ बायोटिक कंपोनेंट। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक। एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे, है ना, ह्यूमन बीइंग है ना, ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द एनिमल्स इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट। ऑल्सो दिस a biotic component in which organism can be divided into the three parts, producer, consumer and a decomposer। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर कि प्रोड्यूसर यानी क्या है। हम लोगों ने आगे भी पढ़ा हुआ है 5th-6th स्टैंडर्ड में कि ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड अ प्रोड्यूसर, है ना। व्हाई दे कॉल्ड अ प्रोड्यूसर? बिकॉज ग्रीन प्लांट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड मेक द वाटर एंड मेक देयर ऑन फूड, है ना, दैट इज कॉल प्रोड्यूसर। सो एग्जाम्पल देखें तो प्रोड्यूसर के ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया एंड सम एल्गिया, है ना। सेकेंड कंज्यूमर कि ऑल द एनिमल विच डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड, है ना, दैट डोंट मेक फूड देयर ऑन सेल्स बट दे डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड, तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। कि वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते बट दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो उसे बोलेंगे कंज्यूमर। जैसे हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सारे, है ना, सारे ऑर्गेनिज्म। Also, consumer can be divided into the four parts, herbivores, carnivores, omnivores and parasites। सबसे पहले बात करके herbivores कि ये क्या होते हैं। ये हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए सिर्फ ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहते हैं तो उन्हें बोलेंगे herbivores। एग्जाम्पल देखें तो काउ, डियर एट्सेट्रा। सेकेंड कार्निवोर्स कि द एनिमल दे डिपेंड्स ऑन ओनली फ्लेश ऑफ एनिमल फॉर फूड, है ना, जो खाने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, उनका फ्लेश ऑफ एनिमल्स खाते तो उसे हम लोग बोलेंगे कार्निवर्स। एग्जाम्पल में देखें तो टाइगर, लायन, है ना, लेपर्ड एट्सेट्रा। थर्ड ओमनिवोर्स कि दे यूटिलाइज प्लांट एज वेल एज एनिमल एज देयर फूड, के जो खाने में प्लांट और एनिमल दोनों को खाते तो उन्हें बोलेंगे ओमनिवोर्स। जैसे हम लोग उसमें आ गए ह्यूमन बीइंग एंड अ कॉकरोच ऑल्सो, है ना। नंबर 4 पैरासाइट्स। कि पैरासाइट्स क्या होते हैं कि दी एब्जॉर्ब द लिक्विड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट, है ना, जो होस्ट बॉडी से डायरेक्टली लिक्विड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और फूड ऐसे वर्क करते हैं तो उन्हें बोलेंगे पैरासाइट। जैसे हम लोगों ने देखा था
प्लाज्मोडियम, है ना, लिवर फ्लू, कस्कता, तो इट आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज पैरासाइट्स, है ना। और लास्ट की बात करें डीकम्पोजर्स, सो ये क्या होता है? सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल वन, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडी है उनके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करती है ना। तो डिकम्पोजर में कौन कौन आते? सम बैक्टीरिया और सम फंगी, है ना। तो हम लोगों ने बात की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी ये जो बात करें कि इकोसिस्टम, अगर एग्जाम में आपको पूछे कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट ऑन इकोसिस्टम, तो आप इकोसिस्टम की डिफाइन लिख के आपको कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको बोले कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। बट एक क्वेश्चन 2 से 3 यानी 2 या 3 मार्क्स में आता है, तो आपको उतना ही लिखना है, बट सारा कवर हो जाना चाहिए ना। आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो और आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फूड चेन, है ना। व्हाट इज इट? तो सबसे पहले फूड चेन क्या होता है? सो इट इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन of a transfer of energy from a sun to different biotic component of an ecosystem that is called food chain, है ना। कि चेन होती है कि जिसमें हम लोग एनर्जी सन से लेके अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फूड चेन, कि इट इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू सिंपल डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट, है ना। लाइक सबसे पहले बात करें तो प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, ओके, जैसे ग्रीन प्लांट, ओके, तो ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा? डियर। देन आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? टर्सरी कंज्यूमर। तो अगर यहाँ पे देखें प्रोड्यूसर, तो ग्रीन प्लांट को खाएगा डियर, प्राइमरी कंज्यूमर। डियर को खाएगा टाइगर, तो ये हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये जो चेन हुई सिंगल चेन, उसे हम लोग बोलेंगे फूड चेन। And we know that about it कि all the living organism of an ecosystem that depend on each other, है ना, for food requirement, कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए। तो ये जो सीरीज क्रिएट होती है ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ये चेन, ये सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? फूड चेन, है ना। अभी इसमें देखें तो कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। ग्रीन प्लांट्स कवर सोलर एनर्जी इनटू दी कन्वर्ट दी सोलर एनर्जी इनटू दी केमिकल एनर्जी due to the process of photosynthesis, and an animal takes this food and energy is supplied to the one animal to another one। कि सबसे पहले ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर एनिमल है वो फूड को खाते हैं, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, उसको टर्सरी कंज्यूमर खाते हैं। तो ये आप देख सकते हो फूड चेन, है ना। ये 3 फूड चेन है, ABC। सबसे पहले प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर डियर ने खाया, उसको टाइगर ने। फिर प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, उसको खाया ग्रेस ऑफर। उसके बाद दैट इज़ उसको खाया फ्रॉग, उसको खाया स्नेक, और स्नेक को खाएगा ईगल, है ना। तो वैसे ही ये होता है। तो इट इज़ कॉल्ड फूड चेन, ओके। इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 स्टेप, 3 और 4 स्टेप में बनता है। अगर ट्रॉफिक लेवल में समझाए तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आएगा प्रोड्यूसर, फिर आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट में आएगा टर्सरी कंज्यूमर। चलो अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड चेन। सो बाय स्टडिंग अ फूड चेन वी कैन अंडरस्टैंड द फूड रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमोंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, है ना। कि सबसे पहले जैसे ही फूड चेन समझे हम लोग पढ़े, तो उससे पता चलता है कि जितने अलग अलग इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड रहते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। सेकेंड, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एंड अ न्यूट्रिएंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ नेचर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फूड चेन। यस, फूड चेन से पता चलता है कि एक एनिमल से दूसरा एनिमल, दूसरे से तीसरा, वैसे एनर्जी फ्लो कैसे रहता है। थर्ड, द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन अ इकोसिस्टम and the problem of their biological magnification can be understood through the food chain, है ना। yes, तो सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझ आता है, ओके। तो दैट इज इम्पोर्टेंस। तो ये हम लोगों ने देखा फूड चेन और इम्पोर्टेंस ऑफ फूड चेन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो भी आपको अच्छे से लर्न करना है 2 to 3 मार्क्स के लिए। चलो अब हम लोग समझेंगे अबाउट द फूड वेब,
कि व्हाट इज इट, फूड वेब क्या होती है ना. सो वी नो दैट अबाउट इट कि व्हाट इज इट. सो each and every living organism that depends on each other for their food requirement and a form a food chain है ना. So this among the various ecosystem each one is a having definite food chain and this definite food chain also. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इच अदर, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए है ना, और फूड चेन क्रिएट करते हैं. अभी जैसे ही अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग डिफरेंट फूड चेन होती है. सो द ट्रॉफिक इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ एनिमल इन अ नेचर कैन नॉट बी एक्सप्लेन एज अ सिंपल चेन. अगर हम लोग पूरा इंटर रिलेशन देखने जाए एनिमल का तो हम लोग सिंपल चेन में नहीं समझ सकते है ना, बिकॉज दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी सॉन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स. सो दैट इज कॉल्ड फूड वेब. कि अगर सिंगल लाइन फूड चेन में अगर हम लोग समझे तो हम लोग समझ नहीं पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, देर आर मैनी सीरीज ऑफ ब्रांचिंग ऑफ लाइन. सो दैट इज कॉल्ड फूड वेब. तो जैसे आप देख सकते हो कि इट इज़ अ फूड वेब दैट इज कंजिस्टिंग ऑफ अ मैनी फूड चेन, कि बहुत सारी फूड चेन कंबाइन होके क्या बनाती है, सिंगल फूड वेब है ना. सो देर आर मैनी डिफरेंट फूड चेन देन मेक अ सिंगल फूड वेब. चलो तो हम लोगों ने समझा फूड वेब है ना, कि देर आर मैनी डिफरेंट फूड चेन इंटरलिंक विथ ईच अदर इन अ वेरियस लेवल. तो दैट इज़ कॉल्ड फूड वेब है ना, जैसे हमने देखा फिगर में. अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. तो फर्स्ट, फूड वेब आर बेसिक यूनिट ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी है ना. यस, ये बेसिक यूनिट है इकोसिस्टम का. ऑल्सो वेब आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इन अ नेचर. यस, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी फूड वेब इम्पोर्टेंस है. तो ये देखा फूड वेब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. भी याद रखना है कि जब भी फूड वेब में ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ नाम लिखना है. ओके, और फूड वेब दिखानी है. सो फिगर फूड चेन में भी आपको नाम लिखना है, फिगर ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ नाम लिख के उसको प्रेजेंट करना है. अब हम लोग देखते हैं ट्रॉफिक लेवल है ना. ट्रॉफिक लेवल किसे बोलेंगे, तो जैसे हमने फूड चेन में अलग अलग स्टेप देखे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड अ फोर्थ है ना. तो जैसे फर्स्ट स्टेप देखा तो प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर. तो ये हमने डिफरेंट स्टेप देखे, उससे बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल है ना. सो व्हाट इज इट. सो द वेरियस लेवल आर अ स्टेप इन विच फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम अ वन जनरेशन टू अनदर वन है ना. दैट आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. के अलग अलग स्टेप या तो लेवल जो फूड चेन में एक फूड और तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक एनिमल से दूसरा एनिमल, तो वो जो स्टेप है उसे बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल है ना. Also the number of trophic level in a food chain is equal to the number of step in a food chain. Yes, trophic level is equal to the step. जितने trophic level आएंगे उतने step, because each step that is form a trophic level. अभी trophic level की बात करें so there are basically 4 trophic level है ना. So first producer, second primary consumer, third secondary consumer and a fourth tertiary consumer. जनरली देखें तो द प्लांट आर प्रोड्यूसर दैट इंक्लूडेड इन अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ना. प्लांट और प्रोड्यूसर किस में आएंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में. सेकेंड द हार्बीवॉर्स यानी हार्बीवॉर्स दैट इज इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी कंज्यूमर्स. सेकेंड कार्निवॉर्स दैट इज इंक्लूडेड इन अ सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड अ लार्ज कार्निवोर दैट इज इंक्लूडेड इन अ टर्सरी कंज्यूमर. तो ये देखा ट्रॉफिक लेवल. चलो अब देखते हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है. तो सबसे पहले तो सनलाइट से प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स और कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स है ना. ऐसा एनर्जी फ्लो होता है. सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि सबसे पहले सनलाइट से प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स और कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्रोड्यूसर मीन अ ग्रीन प्लांट है ना, तो ई सबसे पहले एनर्जी फ्लो कैसे होता है. तो ईच स्टेप और अ लेवल ऑफ फूड चेन दैट फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल एंड एनर्जी फ्लो बिगिन विथ अ प्रोड्यूसर. कि एनर्जी फ्लो स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से. प्रोड्यूसर मीन अ ग्रीन प्लांट एट द टॉप ऑफ द ट्रॉफिक एट द ऑल्सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ना. द एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे मेक देयर ऑन फूड, कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. तो सबसे एनर्जी फ्लो स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से.
देन दिस एनर्जी द मूव अप टू हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक हार्बिवोर्स। उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूसर को कौन, सनलाइट जो प्रोड्यूस की प्रोड्यूसर, उसको कौन खाएगा, हार्बिवोर्स, है ना। तो वो एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हुई, हार्बिवोर्स में। आफ्टर दैट द कार्निवोर्स ईट अ हार्बिवोर्स, है ना, एनर्जी ट्रांसफर टू दी कार्निवोर। उसके बाद हार्बिवोर्स को कौन खाएंगे, कार्निवोर्स, यानी एनर्जी ट्रांसफर कहाँ पे होगी, कार्निवोर्स में। एंड देन हार्बिवोर्स को कार्निवर्स को खाएंगे टॉप कार्निवर, सो एनर्जी फ्लो होगा टॉप कार्निवर्स, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इट इज एन इकोसिस्टम, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ये हमेशा कैसा रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। एंड द एनर्जी दैट इज कैप्चर बाय अ ग्रीन प्लांट डज नॉट रिवर्ट back to the sun, and energy which passes to the herbivores come back to the autotroph। अभी जैसे सनलाइट से प्रोड्यूसर टू हार्बिवोर्स टू कार्निवर्स, और कार्निवर्स टू टॉप कार्निवर्स में एनर्जी फ्लो हुई, बट वो बैक नहीं होती कि जैसे टॉप कार्निवर से कार्निवर में, कार्निवर से हार्बी में प्रोड्यूसर से सनलाइट, वैसे वो मूव होगा नहीं, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। चलो तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।